मैं जब आपसे मिलता हूँ और जिस तरीके का सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और प्यार आप दिखाते हैं मेरी तरफ, वो अनरियल है, अनकंडीशनल लव है। एंड ये एक प्रॉमिस है कि मैं आपका फ़ैन हमेशा रहूँगा। मैं कोई फिल्म देखता था और मैं सोचता था कि मुझे एक्टर बनना है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मेरे अंदर तो ऐसा था कि मैं और भी बेहतर करूँगा तो वो कॉन्फिडेंस मेरा कभी भी जाने नहीं देता था। चाहे सामने वाला मुझे अगर बोल दे कि नहीं, यू आर रिजेक्टेड फॉर दिस रोल, यू कांट डू दिस रोल, तो मुझे लगता था ये उनका लॉस है, ये इनको नहीं समझ आ रहा है, बाद में समझ आएगा। Hello everyone, I'm Radrani and welcome to Speak Easy. This is Celebrate Love with Zoom and Kartik Aaryan. The reason I say that is because he is truly one of the youngest superstars that we have, who's got so much love from fans all over the world. And today is going to be some proof. Not that you need more, but I'm going to be with Kartik and then go and give a surprise to the fans who are not expecting him at all. Kartik Aaryan. आई होप कि मैं बस प्रूव करता रहूँ एंड ये टैग्स तो आते रहेंगे, बट मुझे एक्चुअली में जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा ग्रीड है वो फ़ैन लव है जी। और वो मतलब वो आई थिंक विजिबल भी है, सबको अब तक पता ही चल गया मेरी बातों से, मेरी हरकतों से। आई रियली मतलब डू एवरीथिंग टू जस्ट गेट दैट लव फ्रॉम देम एंड गेट दैट, वो होता है ना कि गेट दैट एंटरटेनमेंट क्वोशंट आउट ऑफ माई सेल्फ सो दैट आई कैन जस्ट एंटरटेन देम। तो मुझे बस वो खुशी मिलती है जब वो लोग स्माइल करते हैं, वो लोग खुश होते हैं कुछ परफॉर्मेंस देखकर, या फिर मेरे इंटरेक्शन से, या फिर मैं उनसे क्या उनके सामने क्या हरकतें कर रहा हूँ। तो इट्स ऑल फॉर देयर लव। मैं बोलना चाहूँगी कि इस कॉन्टेस्ट में हमने उनको बोला कि आपको क्यों चुना जाए, एंड दे हैड द मोस्ट लवली मैसेजेस अबाउट व्हाई दे फील दैट दे कनेक्ट टू यू, एंड दे ट्रूली डिड. And I think that is why today we are doing this. We've selected some of these people who have been absolutely excited to meet you, and they're like, we can't believe it. But the most fun part will be to see when you go and give the surprise to them. So Kartik, are you ready? I'm ready. Let's do it. Yes. तो जैसा कि कार्तिक और मैंने आपको बताया कि हम अभी देने वाले हैं बहुत स्पेशल सरप्राइज कुछ स्पेशल फैंस को हमारे कॉन्टेस्ट के थ्रू, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड दे आर द विनर्स and they are here and they think they're going to do a video one-on-one call with Kartik. लेकिन आपको पता है और मुझे पता है कार्तिक यहाँ खुद है, तो आइए देखते हैं how surprised these fans really get. This is a Celebrate Love with Zoom special, and the best kind of love is sharing it with fans. We ran a contest and we have winners who sent such lovely messages for the superstar Kartik Aaryan, and we've selected some. They are here and we are going to do a one-on-one video call with Kartik himself. So before we go there, let's introduce the winners and our cute little fans that we have here. All right, पूनम, आपसे शुरुआत करते हैं. आप कैमरे में देख के बताओ, आप आपका नाम, आप क्या करते हो? Myself is Poonam Chaurasia. I am working with HDFC as a PB teller in operations. Fantastic. मतलब बहुत patience है इनके पास. Yeah. What about you? Myself, Nidhi Chaurasia. I am into journalism past 5 years. Wow. I have my fellow people here with me who are going to be great journalists. Amazing, Poonam. What about you? My name is Akshama and I am pursuing last year in BCom. Last year in BCom? Yes. अकाउंट सबका संभालने वाली है अक्षमा. और आप बताइए. Yeah, so myself Rutuja, I am pursuing a master's in journalism currently. Okay, perfect. हर एक फैन का एक ऐसा मोमेंट होता है, एक फिल्म होता है जिससे आप कनेक्ट करते हो अपने एक्टर से, है ना? तो हम यहाँ कार्तिक के लिए है. मैं पूछूंगी कि what is it about Kartik Aaryan that you like so much? Which is that one film that you felt you could connect? Starting with Poonam. For me, it was Panchanama 2. अच्छा. The one dialogue which he has said continues without taking a monologue. Yeah, अच्छा, right. monologue से fan हो गया. Yes. That was very fantastic to see that he has not taken a single pause in that, and he has just performed so well. So इस फिल्म में भी है एक. okay, I'm going to see that. I'm going to see Wonderful. that. What about you? Yeah. कार्तिक तो इट्स लाइक मैं उसकी एक भी पिक्चर ऐसे कि मिस ना करूँ, भले वो कैसी भी हो. मतलब ऑब्वियसली कार्तिक की स्माइल तो इट्स लाइक Forever crush. या है ना? Even- तो आज जब वीडियो कॉल में कार्तिक आएगा तो बताना कार्तिक. इनफैक्ट सोनू की टीटू की स्वीटी जो उनका गाना है दोस्ती को लेके, वो हमारे एक ग्रुप है, हम उसको हमेशा डेडिकेट करते हैं. हाउ स्वीट उनको. बट जब वीडियो कॉल में आएंगे तो बता देना खुद, बहुत खुश होगा कार्तिक. व्हाट अबाउट यू?
Why do you like Kartik? What is it about him that you like? I like his like on. बताओ, सोचा वीडियो कॉल बोरिंग हो जाता ना, तो हमने सोचा कि बट हमने कहा था ना कि 5th फैन आने वाला है, तो but कार्तिक आप खुद को फैन के फैंस मानते हो ना? करेक्ट तो झूठ तो मैंने बोला नहीं. करेक्ट हेलो. हेलो हाउ आर यू गाइस Good. अभी पहले तक तो ठीक थे, पहले अभी तो धड़कन यकीन बढ़ दिला गई. देते सबको कि जेन्युइन फैंस है जो कि बहुत बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे कि हम ये कर पाए, and he's taken out that time to do it, of course, and none of them knew that he was here, so I can understand some of them are still looking at you thinking ये सच में हो रहा है कि नहीं. मैं पिछले 3-4 Are you real, Kartik? आई एम रियल रुद्रानी एंड थैंक यू सो मच गाइस यहाँ पे आने के लिए. और इतने दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, आप लोग ट्राई कर रहे थे चीज़ करने का, एंड मैं भी क्योंकि प्रमोशंस में तब से बिजी हूँ तो इस चक्कर में वो टाइम नहीं निकाल पा रहा था. बट आई एम सो ग्लैड कि आप सबसे मिलने को या But he's मुझे मौका here, मिल he's गया. taken out the time, but because हम यहाँ रुक गए. अच्छा है ना, यहाँ इंट्रोडक्शन चल रही थी, she's like yeah. आई एम शेवरिंग स्टे. तो मैं काम करती हूँ, थोड़ा बैक ट्रैक जाते हैं आप पे. क्या कह रहे थे आप कि आपका फॉरएवर क्रश कौन है? कार्तिक अपने को मैं 3-4 साल से ट्राई कर रही, मीडिया में आके नहीं मिल पा रही थी, आज फाइनली मिल रही. अरे इट्स लाइक मैं आपके फिल्म भी इनफैक्ट देखने जाने वाली हूँ, अरे, बट बिल्कुल शाम जाइए. का स्केड्यूल था, बट आपको मिलने के लिए मैंने बोला बाद में देखूंगी. इसके बाद कार्तिक- चले जाते. Of course. आपकी इनफैक्ट अगर फोटो देखोगे लाइक अरे आपका वॉलपेपर है फोन पे. या बहुत अच्छे बाल कितने सही लग रहे हैं. लंबे बाल. तो बेसिकली अब फॉरएवर क्रश से तो आपकी मुलाकात एक्चुअली मेरा एक वो बकेट लिस्ट में से एक पूरा हो गया. कार्तिक बहुत अच्छा लगा. आई कैन स्टिल बिलीव कि वो यहाँ पे है. आई एम सो ग्लैड एंड मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलके यहाँ पे. और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ऐसे जब इंटरेक्ट करते हैं. मैं मोस्टली जब भी ज़्यादातर जब चाहे बाहर जा रहा हूँ, चाहे प्रमोट कर रहा हूँ, चाहे कहीं पे भी, मैं फैंस को बहुत ज़्यादा मिलता हूँ अपने सबको. एंड मैं ट्राई करता हूँ कि जितना वक्त निकाल पाऊँ उनके साथ. सो आई एम ग्लैड कि हम सब ये कर पाए और आपसे भी मैं मिल पाया ऐसे. मैं अभी भी वही सोच रही सामने है या नहीं. तो जब फोटो लोगे ना तब मिल भी जाएगा, तब थोड़ा ऐसे हग कर सकते हो, है ना, कर सकते हो थोड़ा थोड़ा. ओके, विद कंसेंट. जी बिल्कुल. बिल्कुल. बट अब हो गया आपका थोड़ा, अब थोड़ा जाते हैं यहाँ पे, है ना. हेलो अक्षमा, आप मुझे लगता है आप ऐसे बहुत चक्का वाला एक्सप्रेशन है आपके फेस में कि क्या बोलूं. तो आप क्या कह रहे थे कार्तिक के बारे में, बताइए इनको. मैंने जब लुका छुपी देखी थी तभी आई हैड लाइक इंस्टेंट क्रश. So sweet. Thank you. स्वीट. बट आप लोग ने सवाल जो याद किए थे वीडियो कॉल में पूछने वाले, आई होप याद है. इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी वो सवाल पूछने का मौका मिलेगा. सो मौका मत खो देना एक्साइटमेंट में, ठीक है. व्हाट अबाउट यू? हेलो ऋतुजा, व्हाई डिड यू टेल कार्तिक हिमसेल्फ? Why did you connect with Kartik so much? For me, it's his film सोनू की टेटू की स्वीटी. एक्चुअली जो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए केयर रहती है या फिर जो पोजेसिवनेस रहता है, सो दैट आई कैन कनेक्ट टू समवेयर फॉर हिम. एंड ही वाज सो स्वीट. Thank you. Okay, wonderful. So let's start. पूनम जी आपसे शुरू करें. Yes, yes. सवाल तैयार है? Yes. बताइए कार्तिक को क्या पूछा. आपका नेक्स्ट ड्रीम क्या है सर? मुझे वो जानना मेरा है. नेक्स्ट ड्रीम क्या है? मैं मतलब मेरा ड्रीम ऐसे अभी तक थैंकफुली जो भी मांगा है अब तक मिलता रहा है. लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर वो भी हूँ, क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस. ओके. सॉरी बट मैं ऐसे हाँ, ये हाँ, जवाब नहीं, आपको नहीं, या, समझ ही या। गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा या, हूँ या, कि मैं अपने चलेगा। ड्रीम्स कई बार वो शेयर करता नहीं हूँ और मैं अपने तक रखता हूँ, क्योंकि जब पूरे हो जाते हैं पूरे तो हो फिर हाँ वो ऐसा कई बार ऐसा होता है भगवान से क्या मांगा Yes, आपने, right, तो आप सोच तो आप बताते नहीं हो किसी को. Right, right, तो वो चीज़ है. बट जब पूरा हो जाए तो फिर बट कुछ तो पूरे हुए होंगे ना सर, जैसे मेरे को लैम्बोर्गिनी खरीदनी थी. वो मेरी ड्रीम कार थी तो मैंने वो खरीद ली. Okay, वन ऑफ द okay. ड्रीम वो था. अच्छा. मुझे अपना ड्रीम घर खरीदना है तो वो होगा. दूसरा भी है जो मैं अभी. हाँ, ओके, नॉट एन इशू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप बताइए. जी. ओके, सो मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें मैंने देखा था कि आपने किस तरह से स्ट्रगल किया था. लाइक यू वर एक नॉर्मल इंसान है, आपके पास कोई ऐसा भी नहीं था इंडस्ट्री में से जो पहचान के थ्रू गए होगे.
फिर बहुत रिजेक्शंस मिले थे। मुझे जानना है कि उस रिजेक्शन को आपने पॉजिटिव वे में कैसे लिया, बिकॉज कभी कभी मैं बहुत निराश हो जाती हूँ अगर कोई मुझे कुछ बोल देता है। करेक्ट। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि मैं रिजेक्शन जब भी हुआ, मैं बहुत रिजेक्शन देखे लाइफ में, और हर पोजीशन में रहते हुए, ना पोजीशन में ना रहते हुए भी, लेकिन अपने ऊपर कभी भी विश्वास नहीं खोया। मुझे अपने टैलेंट पे या मुझे अपने हार्डवर्क पे बहुत यकीन है। तो एक सेल्फ बिलीफ जो मेरा हमेशा रहा है, वो उसने मुझे हमेशा पॉजिटिव रखा। एंड मतलब जब भी मुझे एक्चुअली लगता है कि अगर ये, फॉर एग्जांपल जब मैं नहीं बना था एक्टर, तो मैं कोई फिल्म देखता था और मैं सोचता था कि मुझे एक्टर बनना है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मेरे अंदर तो ऐसा था कि मैं और भी बेहतर करूँगा। तो वो कॉन्फिडेंस मेरा कभी भी जाने नहीं देता था। चाहे सामने वाला मुझे अगर बोल दे कि नहीं, यू आर रिजेक्टेड फॉर दिस रोल, यू कांट डू दिस रोल, तो मुझे लगता था ये उनका लॉस है, ये इनको नहीं समझ आ रहा है, बाद में समझ आएगा। तो अपने आप को प्रूव हमेशा आप सामने वाले को तो करते रहो, लेकिन अपने अंदर ये एक सेल्फ बिलीफ कभी नहीं खोना चाहिए। एंड हमेशा बीइंग द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम, वो हार्डवर्क कभी भी नहीं जाना चाहिए। वो मेरा हमेशा रहा है कि मैं मेरा रिग्रेट कभी लाइफ में ना आए कि मैंने यार इस पिक्चर में या इस सीन में या इस चीज़ में या इस ऑडिशन में या लाइफ के कोई भी पहलू में मैंने हार्डवर्क नहीं दिया, उतना मैंने अपना 200% नहीं दिया। वो अगर मैंने दिया हो और सक्सेस या फेलियर दोनों कुछ भी हो जाए, फिर रिग्रेट नहीं रहेगा। सो दैट इज वन मंत्रा दैट आई फॉलो फ्रॉम इयर्स नाउ। Wow, that's great. It's true because just a little bit I want to add here is because you know the amount he puts in even like doing stuff, traveling in the city. I don't think he sleep. Ask him how many hours he sleeps. I keep telling him, have you slept? You know, don't I ask him? I become an insomniac. मैं मतलब it's not a right thing to मतलब ऐसा कुछ कि इंस्पायर हो जाए इन चीज़ों से, गलत है। लेकिन because with क्या होता है कि 24 आवर्स भी कम लगने लगते हैं, तो इस चक्कर में वो चीज़ होती है कि नहीं अभी ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। देयर इज नो एंड टू। क्या है कि हर बार जब आप वर्कहॉलिक होते हो, जो मेरे साथ एक ऐसा हो गया कि मैं वर्कहॉलिक इतना हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि अच्छा ये भी खत्म कर लेता हूँ, ये भी खत्म कर लेता हूँ, एक ही दिन में ये भी। इवेंचुअली क्या होता है, आपके पास सोने का भी टाइम नहीं बचता है। बट वो भी है, सोचने का मतलब ये भी है कि मेरा कि मैं अभी सो जाऊँगा तो फिर कल को चैन की नींद नहीं आएगी जब एक्चुअली, तो इसलिए बेटर है कि अभी मेहनत करता हूँ और आगे बहुत टाइम है सोने के लिए। हाँ, वो तो मैंने देखा है कि इतने सारे इंटरव्यूज में कि आप बोलते हैं कि पूरे टाइम आप फोन पे ही रहते हैं, लाइक फोन इज द एडिक्शन। वो भी वर्क ही है, वो भी एक्चुअली वर्क ही है। फोन हैज बिकम अ न्यू ऑफिस एक्चुअली में, उसमें सब काम हो रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली में वो है। सो आई एम एडिक्टेड टू माय वर्क बेसिकली। चलिए अब थोड़ा टाइम देते हैं अक्षमा जी, आप बताइए सवाल। Yes, यहाँ पे I would like to ask you, as a fan, we are really excited for your upcoming project. So, what can we expect from you? अब शहजादा थिएटर्स में लग चुकी है और इसके बाद अब आएगी सत्य प्रेम की कथा, एंड विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट एज वेल। एंड तो वो थिएटर्स में जब वो फिलहाल वो जून में आ रही है, एंड उसमें कियारा और मैं और बहुत बड़ी कास्ट है उसमें। एंड मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि रोमांटिक फिल्म है, फुल फ्लेज रोमांटिक फिल्म आएगी वो, एंड बहुत सही स्टोरी है। तो आई एम जस्ट एक्साइटेड कि इतने टाइम बाद एक रोमांटिक लव स्टोरी आ रही होगी, जो काफ़ी टाइम से आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में नहीं आ रही है। बाकी सारे जॉनर्स आ रहे हैं, बट एक रोमांटिक ट्रू लव स्टोरी वो नहीं आई है। तो वो मेरा फेवरेट जॉनर भी है, वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर। तो उसमें मुझे एक काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसकी रिलीज़ के लिए। कार्तिक और कियारा की जोड़ी सेकंड टाइम आफ्टर बुलबुलिया ये सेकंड हमारी वापस से रिपीट होगी जोड़ी, तो वो है। ऋतुजा, या सो जैसे सबको पता है कि आपने जो भी हासिल किया है वो अपने दम पे हासिल किया है जी। तो अभी तक के आपके इंस्पिरेशन कौन है, या फिर कौन वो ऐसे एक इंसान है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे या फिर अभी तक किया नहीं है? मैंने बहुत लोगों के साथ काम नहीं किया अभी, क्योंकि हाँ मैंने इतनी गिनी चुनी जो फिल्में की उतने ही कोस्टार्स रहे जितने हुआ। और बट मेरा इंस्पिरेशन में मैं शुरुआत से अगर स्टार्ट करूं तो मुझे अमिताभ बच्चन सर, उनका जो एक जर्नी रहा है शुरुआत में, और उन्होंने जिस तरीके से अपना एक चाहे अमित जी हो चाहे शाहरुख सर हो, ये मतलब वो एक
खुद का एक नीश बनाया, खुद का एक ऑडियंस बनाया, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। एंड काम मैं सबके साथ करना चाहूँगा, मतलब वो क्या है कि एक जब भी एक सबके साथ में अलग अलग लोगों के साथ जब आप काम करते हो, अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग एक अलग जोन आता है जो फिल्मों में दिखता है। सो वो तो मैं सबके साथ ही काम करना चाहता हूँ और रिपीट भी करना चाहता हूँ। वंडरफुल। मुझे लगता है कि आप लोग ने बहुत तैयारी करके ये सब सवाल आप एकदम सीरियसली बोलना चाहे। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लगा बिकॉज़ व्हेन यू वर टॉकिंग Physics, chemistry class चल रही है। सो क्यूट, मैंने कहा यू ऑल हैव नॉट बिहेव लाइक दैट एट ऑल, दे आर स्टिल, बट ट्रस्ट मी ही इज रियल। सही है ना, वीडियो कॉल से बेटर यही था। बहुत बेटर मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि वो सामने है। मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि या मुझे भी लग रहा है मैं भी फोन के अंदर वीडियो कॉल कर। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए यूजिंग द हैशटैग सेलिब्रेट लव विद ज़ूम एंड कार्तिक आर्यन, पर हम सारे सवाल तो नहीं ले सकते बिकॉज कार्तिक के पास बहुत बहुत कम टाइम है, बट वी गोना टेक 2-3 क्वेश्चंस, मजेदार वाले सवाल, एंड वी गोना सी व्हाट कार्तिक हैज टू से। देयर इज समवन कॉल्ड श्रेया शहजादा, उन्होंने अपना वो रखा हुआ है, एंड ही सेज Shreya is asking you, how does he aces the dance numbers so easily with his footwork? बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है उसमें भी। लेट मी टेल यू, मेरे पैर बहुत बार बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनमें ऑलमोस्ट मतलब चल नहीं पा रहा हूँ और वो डांस स्टेप्स करने पड़े, कुछ ऐसे स्प्रे व्रे लगा के। मेरे इनफैक्ट लास्ट एक गाने के टाइम तो मेरे मैं वैनिटी में जाता था, मेरा एक बकेट रखा हुआ था, उसमें आइस थी और पानी था, तो आइस बकेट के अंदर पानी रख के आई थिंक वो 15 मिनट का जो सेशन होता है उससे वो कोल्ड वो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, आई फॉरगॉट वो आइस पैक टाइप का देना पड़ता है। बेसिकली वो पूरा पैर बस सबमर्ज करके रखो इतने ठंडे पानी में, और फिर उसके बाद उतनी मेहनत से डांस करो जाके बाहर, क्योंकि थोड़ा सा पैर चल रहा है, तो ऐसे करके ये बहुत ज्यादा He makes it look easy but it's not easy. yeah, to make it look effortless, a lot of effort goes into it, and but thankfully वो एक मेरे बॉडी में बैठ जाते हैं ये movements, तो I am able to do them, so yeah, thank you for noticing them. तो श्रेया के बाद तुष, कार्तिक की तुष, कार्तिक तुष, it says every age group they love you, admire you, and they all root for you. A promise you'd like to make with us? That I'll always be the same and I'll always love you guys a lot. In fact मेरा प्यार आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, मुझे ऐसा पूरी तरह से यकीन है, क्योंकि जिस तरीके से मैं जब आपसे मिलता हूँ और जिस तरीके का सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और प्यार आप दिखाते हैं मेरी तरफ, वो अनरियल है, अनकंडीशनल लव है, एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ, एंड आई ऑलवेज थिंक कि मैं बहुत लकी हूँ जिस तरीके का प्यार आप सबसे मुझे मिलता है, सो आप सबसे भी, एंड सो आई एम जस्ट really happy and really lucky to have fandoms or fans like you guys, and ये एक promise है कि मैं आपका fan हमेशा रहूँगा। How sweet is that? This is the last one we are doing, because, and apologies to everybody who sent so many. Like you said, he's here and he's had a hectic schedule. We've managed to make this happen. But there you go. It's a very cute one because कटोरी की भी अलग फैन बेस है. So I think this is the दूसरा question. It's a cute question saying how does it feel to be a dog parent, and how has life changed after the arrival of Katori? This is a cute question. So I picked this up because I'm a dog lover too. Actually मैं डॉग सिबलिंग हो गया हूँ. मेरी बहन बन गई है कटोरी. मेरी मम्मी ने उसको एकदम पूरी तरह से अपनी बेटी की तरह पाल लिया है. वो एकदम उसका प्यार ऐसे करती है जैसे किट्टू से ज्यादा वो कटोरी पे प्यार बरसाती है. और मैं भी ऐसी सोचता हूँ ये हो क्या गया है. एंड वी हैव, मतलब हमारा बहुत सॉलिड रिलेशन है कटोरी और मेरा, और कभी कभी बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप भी है. वो जब ज्यादा प्यार नहीं देती है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ उससे. एंड बट बहुत आई एम जस्ट, life has really changed after her becoming a part of our family, and now she's someone जो बहुत actually में she's become you know like the queen of the house, and the brat जिसको सब बस पैम्पर करते रहते हैं, तो उसको पैम्परिंग में पूरा वक्त जाता है.
मैं कहीं सुबह भी अगर काम पे जा रहा हूँ तो आधा घंटा मैं उसकी वजह से लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ वो ज़मीन पे मैं सवाल लौटता सही हुआ था। दिख रहा हूँ। कभी कोई आ जाता है घर पे और मैं ज़मीन पे नीचे पड़ा हुआ हूँ और वो भी कूद रही है, इधर से उधर भाग रही है, तो दिस Life has changed. life has just changed, but in a very better and a nicer and a positive manner. So I love Katori. Yeah. That is amazing. We're going to end it there. Thank you so much, all of you. It was lovely to see. You all have always supported him. I think the reason of doing this is we wanted to celebrate, and this is the most special kind of love, na Kartik? Fully unconditional love है, and it's like when मतलब मैं मुझे प्यार जो मिल रहा है आप सबसे, वो ऐसा है कि एक तरीके से एक स्ट्रेंज वो है कि आप, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। अगर आप देखो मुझे तो मेरे बारे में गूगल में आपने देख लिया होगा, मेरे बारे में आपने मेरे फोटोज देखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फिल्में देखी, लेकिन मेरे को आप पर्सनली नहीं जानते हो, लेकिन आप इतना प्यार मुझे देते हो। इसलिए मैं वो बोलता हूँ कि वो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने दूर तक कहाँ कोने कोने से लोग होते हैं जो प्यार देते हैं, and I feel blessed, so thank you for this. Thank you so Thank much you for so meeting much. us. Meeting us and give your time. Or better and real, isn't it? Yes. Thank you so much, and like we said, we've celebrated love with Zoom and Kartik and his fans, and what better way to do this than being here. Thank you once again for watching this. Like Kartik said, fan love is the purest form of love, and we've thoroughly enjoyed celebrating that with you and with all of them. Thank you so much, and keep watching Zoom.